Welcome all. So today we are here at the iconic venue of Shivaji Park, Dadar, and we are here for Prakash Puranik Memorial Trophy 2025. The final match is going to be between Bhama CC versus Dilip Vengsarkar Foundation. Few minutes back, toss has happened, and Bhama CC have won the toss, and they have choose to field first. So it's a sunny morning out here, and we are here at the Shivaji Park, Dadar. This is the Prakash Puranik Memorial Trophy 2025, and the final match is going on between Bhama CC versus Dilip Vengsarkar Foundation. Bhama CC have won the toss, and after first two deliveries, score is 0, and the third one goes the same. Third one also the dot ball. A very nice bowling, a couple of nice deliveries at the good length, in swinging deliveries, as we have seen some part of grass over there in the pitch, and this is the just 11 o'clock in the morning, so wicket look like a little bit spongy, and this is the benefit for Bhama CC right now. This is the in swinger but goes down the leg side. Umpires call it wide, and the first run on the scorecard for Dilip Vengsarkar Foundation in this match. This is the final, and both the teams looks good in a touch. This is the iconic venue and iconic club, Shivaji Park Gymkhana SPG. Few months back, it has inaugurated by the great Mr. Sachin Tendulkar, newly renovated now. This is the drive nicely driven by the batter. There was extra cover. This is a T20I game, so we have a 6 overs of power play, and in this power play, we can see the two fielders going outside the circle, that is deep fine leg and deep extra cover. Kritika is the bowler, and Sara facing Kritika. This time cuts another dot delivery. Good bowling by Kritika. Bhama CC has the benefit of the first innings bowling. They have won the toss and they choose to bowl. And why they are bowling, they are proving it nicely till now. Just 2 runs in this over till now. Last delivery of the over, Kritika. An in swinger and bowls her. And now batter has to depart. Batter Sara has bowled out. A good in swinger, good length delivery. Sara misses it totally and going to the pavilion. First breakthrough for Bhama CC, and after completion of 1 over, Dilip Vengsarkar Foundation are 2 for 1. गेंदबाजी में जिस प्रकार से यहाँ पर तुषी शाह आई हैं, ऑलराउंडर हैं तुषी, और जिस प्रकार से उनकी गेंदबाजी है इस प्रतियोगिता में, तुषी किस प्रकार से गेंदबाजी करती हैं देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कृतिका कृष्णन जो कि पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थी और अच्छी बल्लेबाजी की थी, उन्होंने 8 चौके लगाए थे, 1 छक्का लगाया था और गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन था। तुषी की पहली गेंद और पहली गेंद को शाहीन ने जिस अंदाज में खेला, पावर प्ले है, सर्कल बढ़ा चुकी हैं इस समय भामा सीसी। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा यहां पर आता हुआ। भामा सीसी के कोच प्रतीश भोईर जिस प्रकार से अपनी टीम को उन्होंने तैयार की है, एक अच्छी टीम, बेहतरीन टीम, और थाना में जिस प्रकार से वे अभ्यास करती है, सेमीफाइनल मुकाबले में विक्ट्री सीसी को जिस प्रकार से उन्होंने परास्त किया था, 18 रनों से जीत दर्ज कराकर फाइनल में उन्होंने प्रवेश पाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर भामा सीसी ने। और यहां पर इस खिलती हुई धूप के साथ बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के हाथों को लगती हुई गेंद जिस प्रकार से निकली, फिसली, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले हैं। और जब तक थ्रो आता सीमा रेखा के करीब से, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ
तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लेकिन विकेट कीपर ने जिस प्रकार से वहां पर प्रयास किया था, कोशिश की थी, दस्तानों में लगती हुई गेंद जिस प्रकार से निकली थी, अच्छा प्रयास था, अच्छी कोशिश थी। और सुबह के सत्र में आपके शरीर में वो हलचल होनी जरूरी है। तुषी शाह दूर वाले छोर से इस बार अच्छी गेंद, अपील यहां पर आउट का इशारा आता हुआ, विकेट यहां पर गिरता हुआ। तो जिस प्रकार से दूसरा झटका दूसरे ओवर में यहां पर लगा है, शाहीन यहां पर आउट हुई हैं और दोनों ही सलामी बैटर्स पवेलियन का रास्ता इस फाइनल मुकाबले के शुरुआती दौर में दिखलाई पड़ रहा है। और एक शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, जहां एक ओर नजर आई हैं कृतिका, तो दूसरी ओर से तुषी शाह अपनी टीम के लिए खुशियां लेकर आ रही हैं। So after completion of 2 overs, team Dilip Vengsarkar Foundation are 6 for 2. So Kritika comes in the spell again for her second over. Simran is the new batter, comes into the crease, drives it softly with the soft hands. There is a deep point, just a single on this ball. And now they are 2 down on the score line of 7. This time bowls nice delivery, dot delivery. Next ball of this over, Kritika bowling well in this final game. This time in finds the inside edge on the good length. Nice ball, dot delivery, surprising the batter. Nice delivery by the Kritika. Dilip Vengsarkar Foundation versus Bhama CC, and Bhama CC are now on the front foot in this match. I think this is the last delivery of this over. Cuts it nicely. There is a deep point, just a single, nicely fielded on this ball. Third over has been completed, and after completion of 3 overs, Team Dilip Vengsarkar Foundation are 11 for 2. So we have Assistant General Secretary of Shivaji Park Gymkhana, Mr. Sunil Ramchandran sir. Sir, welcome to DD Sports. Sir, this is Prakash Puranik Season 4 trophy, and how you define the legacy of this tournament? Sir? See, Prakash Puranik himself was a very good cricketer. He has played for Gymkhana for many years. He was, in fact, the captain of Shivaji Park Gymkhana. And he used to play with Ajit Wadekar, Vijay Mandrekar, Ramakant Desai, and Padmakar Shivalkar. He was an ex-Tata player. So, to get something new, in fact, the initiative taken by Mahim Jubilant Club, where he used to play there also later. Yeah. Then we thought of having a good tournament for girls, which is which is very which is attractive for ladies cricket. That type of tournament, which Mumbai's topmost 16 teams had participated in this. Now today is the final. So, in fact, devoting this all to Prakash Puranik, it's a big thing, because Prakash Puranik himself he was a cricketer, and I think this legacy should go on. Not only for ladies, even for gents, we should have. Ex-cricketers' name we should keep this tournament. So I feel Mahim Jolam also is doing a marvelous job, and we Shivaji Park Gymkhana are always there for cricket, for any game, for any cricket tournament. We always help, which is there into Shivaji Park. In fact, we also have our Ramakant Desai Vijay Mandrekar tournament, which Yeah. will be in Jan or February, and so accordingly that I think. Prakash Puranik was a very big name in Mumbai cricket. So that is why we are having this tournament. Sir, some domestic and international experienced players, they are playing in this tournament. As we have seen Poonam Raut, she is batting brilliantly in the crease. How this helps to the new players who are coming up in this tournament? See, Poonam Raut, basically she's an India player, India Yeah. club player. Because the other players, by watching Poonam Raut itself, they will get a good, benefit to see Poonam Raut not only in her team. In fact, in the opposition team, the calculated game what she batted today also was her experience, and what she has represented India. The atmosphere of the Indian team, she can get it to her team also, and she is playing. She yesterday also she batted very calculated, and for 20 years game we need player like Poonam Raut. Yeah. And we can see the 2020 ladies team also with that kind of experience. We have won the World Cup also. Yeah. So in fact, Poonam Raut, bad luck for her for not being in the Indian side, but I think she will, by performing like that, she should come
come back and play for India itself. All the best to her. युवा बेहतरीन लड़कियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से वे अपने खेल की प्रतिभा दिखा सकती हैं और कई सारे सिलेक्टर्स महिलाओं के लड़कियों के आए हुए हैं, देख रहे हैं इस फाइनल मुकाबले को। आपको अपना 100% दिखाना है खेल शानदार अंदाज में, और इसी के लिए आप इस तरह के मंच तक पहुंचे हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं। बस आपको अपने बेहतरीन खेल को उस आखिरी अंजाम के रूप में सबके सामने रखना है। पूनम यहाँ पर तैयार हो रही हैं, दबाव है, प्रेशर है, रन्स बनाने हैं, 20-20 ओवर के मुकाबले हैं। पावर प्ले में वाइड बॉल का इशारा आता हुआ लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई थी, और जिस अंदाज में यह अतिरिक्त रन आए, थोड़ा सा और नियंत्रण, जिस प्रकार से ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर तुषी शाह गेंदबाजी कर रही थी, अच्छी थी। लेग स्टंप के बाहर यह भटकी हुई गेंद करने की आवश्यकता है नहीं। बैटर को मौका मिलेगा अपने आप को क्रीज पर जमाने का, बनाने का। यही लेंथ, यही लाइन रखने की आवश्यकता है ऑफ स्टंप के बाहर। बैटर्स को परेशानी होगी। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ, और कुल मिलाकर जिस तरह से ओवर यहां पर समाप्त हुआ है, 3 विकेट गिरे हैं, और इन 3 विकेटों के नुकसान पर जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, दोनों ही बैटर्स इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं, चिंता में हैं, परेशानियों के घेरे में हैं। So after completion of 3 overs, they are 17 for 3. Third wicket goes down and new batter comes into this crease, Manjari Gavde. This is the third over by Kritika in this match so far. Bowls Fuller, just giving respect to the bowler. Bowling fuller lengths and ball is getting a movement. Ball is swinging so hard. That's why batters are playing so nicely, giving respect to the ball. And after power play ends, I think they're gonna smash the ball to the boundary. Next ball of Kritika. These all the players of Bahama Cricket Club have groomed so well in the game. They know how to field, they know how to bowl, they know how to get a proper idea, they know how to get that intent, get that motivation to field, how to build that attitude in themselves. Bowls Fuller, drives it perfectly, straight down the ground. There is a fielder, misfields it, and ball is going for a boundary. I think this is the first boundary of this match, and that comes from Manjari Gaude's bat. Nicely played. Just opens the face of the bat to Fuller length delivery, picks it properly, and drives it all the way to the boundary. Scoreline is moving forward. It's going above the 20s in this power play. Founds the outside edge. Just a single, a quick single, and that's nice. When you rotate strike, you get a clear idea of the strike rotating. A clear communication between those two batters helps to build the score line with a good acceleration, with a proper average, with a proper run rate. And that's what matters in this first innings. How you gonna score, how you show that intent, how you show that power, how you show that skill to rotate the strike. Next ball by Kritika. Fuller length leaves it, just a dot delivery. So after completion of 5 overs, they are 22 for 3. तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और तुषी शाह फिर एक बार दूर वाले छोर से अपने तीसरे और पावर प्ले के आखिरी ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रही हैं। पहली गेंद जिस प्रकार से उन्होंने की, एक अच्छी गेंद मंजीरी के लिए, और मंजीरी और पूनम राउत की जोड़ी जिस प्रकार से मैदान पर है, 2 विकेट तुषी के नाम पर हैं अब तक इस पावर प्ले में, और एक कसी हुई किफायती शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया है। इस बार हल्के से शॉट, फाइन लेग सर्कल के अंदर सिंगल यहाँ पर लिया जरूर है, लेकिन वो प्रेशर साफ नजर आ रहा है दिलीप वेंगसरकर एकेडमी पर। और भामा सीसी की टीम ने जिस प्रकार से
इस प्रकाश पुराणिक मेमोरियल ट्रॉफी 2025 जो कि अपने चौथे संस्करण में इस समय चल रही है, पूरी तरह से प्रेशर बनाया है दिलीप वेंगसरकर एकेडमी पर भामा क्रिकेट क्लब ने। ऑफ स्टंप के बाहर टैप करते हुए खेला, गैप ढूंढा है खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती वाइड थर्ड मैन के क्षेत्र में से सिंगल ही यहां पर मिलेगा। मुश्किल परिस्थितियां हैं, 3 विकेट बहुत जल्द ही पावर प्ले में गिरा है और वह जो दबाव है, वो प्रेशर है, वो साफ झलक रहा है। तुषी कोशिश करेंगी कि और एक आध विकेट यहां पर चटकाएं। ब्लॉक होल में गेंद खोद कर निकाला, गेंद दंदनाती हुई निकल जा रही है, वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑन को छोड़ती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, और यह आता हुआ दंदनाता हुआ 4 रनों का इशारा। एक अच्छा चौका, शानदार चौका। एक लंबा इतिहास भारतीय क्रिकेट में, मुंबई क्रिकेट का रहा है, लेकिन महिलाओं का क्रिकेट चल रहा है। अच्छी गेंद, पुरुषों के साथ साथ महिला क्रिकेट को भी जिस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है, फायदा उठा रही हैं। और इस डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 विकेट यहां पर गिरे हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए दिलीप वेंगसरकर एकेडमी के, और रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 68 हो चुके हैं। स्पीच खेला, कारपेट ड्राइव, कदमों का इस्तेमाल किया, सिंगल यहां पर मिलेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है, और जिस तरह से मंजीरी और पूनम राउत ने पूरी जिम्मेदारी संभाली है दिलीप वेंगसरकर एकेडमी की। पूनम राउत एक ऐसा नाम जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध शतक, वो 130 रनों की पारी, और भारतीय क्रिकेट की सेवा जिस प्रकार से की है उन्होंने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 3 शतक उनके नाम पर है। एक आयरलैंड के विरुद्ध पहला शतक आया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरा शतक, और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध तीसरा शतक उन्होंने जिस प्रकार से जड़ा है। T20 क्रिकेट में भी 75 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी उनकी, शानदार, यादगार। और आज खेल रही हैं इस प्रकाश पुराणिक मेमोरियल ट्रॉफी में, और अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं। खेला, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लपेट कर खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। मंजीरी ने सिंगल वहां पर मिलेगा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, और जिस तरह से गेंद फील्ड की गई है, भामा क्रिकेट क्लब ने शुरुआत काफी अच्छी की थी। कृतिका और तुषी शाह ने 3 विकेट पावर प्ले में जिस प्रकार से चटकाए थे, 28 पर 3 थे, लेकिन उसके बाद पारी को सजाया, संवारा, बनाया दोनों ही बैटर्स ने। शाहीन अब्दुल्ला और सारा सावंत सलामी बैटर्स आउट हुए, और उसके बाद सिमरन शेख भी बहुत जल्द ही आउट हुई। और सिमरन शेख की बात कहें तो जिस तरह से WPL में वे खेलती हैं यूपी वॉरियर्स के लिए, एक अच्छी खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, शानदार ऑलराउंडर हैं। और पहले ओवर द विकेट जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रही थी यहां पर, अब राउंड विकेट आई हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तो ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ निधि घरत का ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हैं दिलीप वेंगसरकर एकेडमी में। अस्मिता गेंदबाजी कर रही हैं दूर वाली छोर से। दिलीप वेंगसरकर एकेडमी में सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ जूनियर खिलाड़ियों का भी समावेश जिस प्रकार से है, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के उन जूनियर गर्ल्स का टीम में बहुत कुछ सीखने के लिए है। शाहीन अब्दुल्ला हो, सारा सावंत हो, सिमरन शेख हो, पूनम राउत हो, इनसे मंजीरी हैं, इनसे बहुत कुछ सीख रही हैं ये युवा प्रतिभा अपने सीनियर्स के साथ। अस्मिता दूर वाले छोर से कदमों का इस्तेमाल किया, ब्लॉक होल में गेंद अच्छी थी, खोद कर खेलना चाहती थी ऑन साइड में, पूरी तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। पूनम राउत नॉन स्ट्राइक के एंड से बता रही हैं मंजीरी को कि किस तरह से इस तरह की गेंद को ऑन साइड में आपको खेलना है, लेकिन वह टाइमिंग और आपका कदम ताल काफी जरूरी है एक अच्छे स्ट्रोक के लिए। लेग स्पिनर हैं
स्विप किया, अगेंस्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सिंगल पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाएंगी पूनम, लंबी दौड़ लगा रही हैं, लंबे लंबे कदम जिस प्रकार से चल रहे हैं दिलीप वेंगसरकर एकेडमी इस प्रकाश पुराणिक मेमोरियल ट्रॉफी के चौथी बार फाइनल में पहुंची है। पहली बार फाइनल हारी थी, रनर अप थी, उसके बाद दूसरा और तीसरा संस्करण विजेता थी दिलीप वेंगसरकर एकेडमी, और फिर एक बार चौथी बार फाइनल में पहुंची है। तो उनका वो जो दबदबा है इस ट्रॉफी पर वह अब भी कायम है, दिखा रही हैं वो रुतबा, वो दमखम। कदमों का इस्तेमाल किया, हल्के से खेलकर सिंगल के लिए गई हैं, थ्रो स्टंप बिखेरा गया, यहाँ पर महक विकेटों के पीछे हैं। So after completion of 12 overs, 80 for 3. This time bowls Fuller and finds the gap in the deep mid wicket. Poonam Raut and Manjiri Gavde. They both have scored a good partnership in those after starting from 6 for 2. They are now for 84 for 3. Bowler is Nidhi. Off spinner Nidhi has bowled some crucial spells in this match so far. This is the final game of Prakash Puranik Trophy Season 4. Bowls Fuller, goes for sweep. There is a deep square leg, and there are two more runs added in the scorecard. Scorecard is now at 86 after completion of 3 deliveries. Scorecard at 86. After 3 deliveries, Nidhi conceded 6 runs in these 3 deliveries. As we are looking to the field, there is a deep extra cover, deep square leg, deep mid wicket, long on, goes for a scoop and misses it completely. Length is outside the off stump, and Nidhi is bowling now very particularly, very brilliantly in this spell, because she knew that batter is going to shuffle down the leg and get that trademark shot of Poonam. This time flicks it for a single. Manjiri. This is the double. Little bit misfield. Score line is at 88. After 5 deliveries, Poonam Raut has scored some brilliant sixes in this match. One is over the long on that has gone miles away, and one at the long off. Nicely done by her bat. She has a lot of experience in this tournament so far. This is the season 4, and this is 4th final of Dilip Vengsarkar Foundation, as they have dominated in those last couple of years in this tournament so far. Flicks it, just a single, goes for a double, and she gets it. Double from batter Manjiri, and after completion of 13 over, scoreline of Dilip Vengsarkar Foundation is at 90 for 3. 18 ओवरों का खेल हो चुका है, 147 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर निधि घरत आई हैं गेंदबाजी करने के लिए। और जिस तरह से पूनम राउत यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही हैं, 46 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद वे खेल रही हैं, और मंजीरी गावड़े जिन्होंने कि 44 गेंदों में 51 रन बनाए हैं। दोनों ही बैटर्स ने अपने अर्धशतक पूरे किए हैं। दबाव में है इस समय भामा क्रिकेट क्लब की टीम। जिस तरह से दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन खेल रही है, अपील यहाँ पर हुई जरूर है, लेकिन इस अपील में थोड़ा सा उत्साह था, आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। और चौथे विकेट के लिए साझेदारी जिस प्रकार से 133 रनों की हुई है 88 गेंदों में, एक अच्छी साझेदारी, बेहतरीन साझेदारी, और टीम को लिए एक निर्णायक साझेदारी नजर आ रही है। और यही साझेदारी का दौर दोनों ही बैटर्स को इसी अंदाज में आगे की तरफ बढ़ाना होगा, क्योंकि पूनम राउत जिस प्रकार से उनका नाम है भारतीय क्रिकेट में, उन्होंने अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। दीप्ति शर्मा के साथ वो यादगार 320 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए साउथ अफ्रीका की सरजमी पर आयरलैंड के विरुद्ध, जिस प्रकार से उन्होंने 109 रन जड़े थे नाबाद, और उनका पहला एक दिवसीय शतक था। इसी तरह से उन्होंने एक बहुत ही उम्दा बेहतरीन पारियों का वह इतिहास रचा है।
और एक दिवसीय क्रिकेट में सलामी जोड़ी के रूप में सबसे बड़ा स्कोर यदि पुरुषों और महिला क्रिकेट की बात कहें तो पूनम राउत के नाम पर दर्ज है दीप्ति शर्मा के साथ में। और उसके पहले वह रिकॉर्ड जिस प्रकार से सारा टेलर और कैरोलिन एटकिंस के बीच में, इंग्लैंड की खिलाड़ी के बीच में था 229 रनों का, उसे उन्होंने तोड़ा था। और पुरुषों के क्रिकेट में उपुल तरंगा और सनत जयसूर्या के बीच में जिस तरह से साझेदारी हुई थी 286 रनों की सलामी बल्लेबाज के तौर पर, उन तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए यहां पर एक नया कीर्तिमान उनके नाम पर अब भी अंकित है। पूनम राउत के चौका आता हुआ शानदार अंदाज में, गेंद निकल गई डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। मंजीरी गावड़े जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रही हैं, 19वां ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ निधि घरत परेशान थी अपनी गेंदबाजी में। 3 विकेट ही अब भी स्कोरबोर्ड पर बरकरार है और रन संख्या जा पहुंची है 156 रनों पर। एक अच्छी साझेदारी, बेहतरीन साझेदारी, 156 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दूर वाले छोर से आखिरी ओवर की शुरुआत, गेंदबाज तैयार हैं और पूनम तैयार हैं इस आखिरी ओवर में धमाका करने के लिए। और जी हाँ, यह आता हुआ धमाका ऊंचा लंबा, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर और दे गई 4 रनों का इशारा। ऊंची ऊंची मंजिलें सामने, इमारतों की हवा में गेंद उछाल कर खेला और एक मौका मिला है। 1 बाउंस 2 बाउंस, दंदनाती हुई गेंद निकल जा रही है सीमा रेखा के बाहर और एक चौका आता हुआ शानदार झन्नटेदार अंदाज में। पूनम राउत का बैक टू बैक 2 चौके, 91 रनों पर बल्लेबाजी कर रही हैं। क्या यहां पर अपना सैकड़ा पूरा करेंगी इस ओवर में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर विद द टर्न गेंद को जिस प्रकार से खेला, ऑन साइड में सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया पूनम ने। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखेंगी, 93 रनों पर जा पहुंची है। 3 गेंदें इस ओवर की हुई हैं और 3 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है सैकड़ा जड़ने के लिए। इस श्रृंखला में पूनम राउत ने अच्छी बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए और जिस तरह से उनकी कद काटी है, अनुभव है अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने का, भारत का प्रतिनिधित्व करने का, टेस्ट मैच, एक दिवसीय मुकाबले, T20, तीनों में ही अपना बल्ला चलाया है। और इस बार बल्ला चलाया है, गेंद हवा में खिलाड़ी को छकाती हुई फिर एक बार निकल गई दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ, 2 गेंदें शेष हैं, 3 रनों की आवश्यकता है यहां से अपने शतक को पूरा करने के लिए। अपील यहां पर की जा रही है लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निकलती, यही बताए वहां पर नम्रता बिड़वई अंपायर हैं, स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में श्रुति जागुल नजर आ रही हैं। महिला क्रिकेट में महिला अंपायर, महिला स्कोरर वैष्णवी माडिक स्कोरिंग की भूमिका में नजर आ रही हैं। आखिरी गेंद, 3 रनों की आवश्यकता, चूंकि यहां पर सिंगल आया जरूर है। महक विकेट के पीछे जिस प्रकार से सोच रही हैं बाई के रूप में अतिरिक्त के माध्यम से रन आए। ओवर समाप्त होता हुआ तो कुल मिलाकर 20 ओवर का खेल हो चुका है। 97 रनों पर नाबाद यहां पर पूनम राउत अपने शतक से वंचित रह गई, लेकिन अर्धशतक दोनों ही बैटर्स के नाम पर जिस प्रकार से रहा, मंजीरी गावड़े ने 51 रन बनाए और 20 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर जिस तरह से पहुंची है, वह काफिला रनों का दिलचस्प आंकड़ों के साथ फाइनल मुकाबले में 172 रनों पर पहुंचा है और 173 रनों का लक्ष्य भामा क्रिकेट क्लब को दे दिया है इस फाइनल मुकाबले में जीत का। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का फिर एक बार प्रकाश पुराणिक मेमोरियल ट्रॉफी 2025 इस समय शिवाजी पार्क के मैदान पर जिस प्रकार से चल रही है, 2 टीमें फाइनल में और गेंदबाजी दूर वाले छोर से जिस प्रकार से शुरू हुई है, अच्छी गेंदबाजी की क्रम और बल्लेबाजी में भी दोनों ही बैटर्स शुरुआती समय में वह तेजी दिखा रहे हैं। दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन की बात कहें तो गेंदबाजी में श्वेता, फातिमा जाफर, रेशमा अच्छी गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में। अब तक इन गेंदबाजों ने बल्लेबाजों का वो जो प्रेशर था उसे पूरी तरह से हटाया है। आदिति सुरवे गेंदबाजी कर रही हैं दूर वाले छोर से, महक पोकर और रुशाली इस समय बल्लेबाजी में हैं।
और महक विकेट कीपर बैटर हैं, सलामी बल्लेबाजी काफी अच्छी करते हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में 16 रन पर आउट हो गई थी, लेकिन वो जो कहर है वो इस मुकाबले में वे दिखाना चाहेंगी। और दोनों ही सलामी बैटर्स काफी मंझे हुए हैं और इस प्रतियोगिता में अच्छी बल्लेबाजी की है उन दोनों ही बैटर्स ने। अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। दोनों ही टीमें धाकड़ हैं, मजबूत हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये गेंद अच्छी थी, टपक आने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, सीम का अच्छा इस्तेमाल था, डॉट होती हुई। वहीं भामा क्रिकेट क्लब के कोच प्रतीश भोईर, अच्छी गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया, मिड ऑफ, थोड़ा सा जो वाइड डिश था, स्ट्रेटर था, उसके पास गेंद पहुंची। ओवर समाप्त होता हुआ एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ है, दोनों ही बल्लेबाजों को बांधे रखा है। तो दोनों ही पारियों की शुरुआत गेंदबाजों ने अच्छी की है, रेशमा गेंदबाजी कर रही हैं। 172 रनों का लक्ष्य है इस बार खेला। विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद, फाइन लेग से जब तक खिलाड़ी वहां पर आती, सिंगल यहां पर मिला है। रेशमा इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, बेहतरीन कवर ड्राइव, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रही हैं, क्या यहां पर रोक पाएंगी? गेंद दंदनाती हुई निकल रही है, सीमा रेखा के बिल्कुल करीब गेंद को रोका गया। और जिस तरह से रनों का काफिला 22 गज का ये यहां पर पूरा कर रही हैं दोनों ही खिलाड़ी, जानती हैं चौके उस तरह से आ नहीं रहे हैं शुरुआती समय में। सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करना और डबल को तीसरे रन्स में कन्वर्ट करना, यही इस समय घुड़दौड़ लगानी होगी। 172 रनों का विशालकाय लक्ष्य भामा क्रिकेट क्लब के समक्ष इस समय है। फाइनल मुकाबला है, 2 बार की विजेता गत विजेता के सामने भामा क्रिकेट क्लब खेल रही है और दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन चौथी बार फाइनल में पहुंची है। ओवर समाप्त हुआ है दूसरा और 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 9 रन हो चुकी है भामा क्रिकेट क्लब की रन संख्या। After the completion of 3 overs, they are 22 without any loss. Third over, again Reshma into the attack for her second over. They are finding for a wicket, but in this sunny conditions, red soil wickets gets extra bounce, gets more help to the batters, and this help will play a crucial role in the batting of Bhama Cricket Club. Outside the off stump, a proper line and length. Bowls Fuller and gets the stump, gets the off stump, and gets the wicket. Mehak has to depart on the score of just 23. 23 runs on the scorecard, and new batter Saloni comes into the crease in this power play. They have already lost their first wicket, Bhama Cricket Club, and they need to cover up this total of 173 to win this title of Prakash Puranik Trophy Season 4. Dilip Vengsarkar Foundation is playing their 4th final in this 4th edition. So the domination level of Dilip Vengsarkar Foundation is at another level in this tournament so far. They have played 3 finals in last 3 seasons and won 2 of them. So the winning percentage is also matters with this 80% win percentage is now with Dilip Vengsarkar Foundation in this tournament. This time goes over the mid-off, and I think this clears the rope by clicking another boundary in the scorecard. And after completion of 4th over by Reshma, the score line is now at 27 for 1. रिद्धि आ रही हैं दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ की गेंदबाज हैं और जिस तरह से कप्तान इस समय भामा क्रिकेट क्लब की मौजूद हैं, पहली गेंद और जिस तरह से चाइनामैन गेंदबाजी करती हैं, अच्छी गेंद, अपील यहां पर की जा रही है। रन आउट का खतरा जिस प्रकार से यहां पर बन रहा था, एक अच्छी फील्डिंग सर्कल के अंदर नजर आई है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पॉल एडम्स की याद दिलाते हैं, इसी अंदाज में वे गेंदबाजी किया करते थे। और जी हाँ, बिल्कुल
वही अंदाज, लेकिन इस बार गेंद पॉइंट के क्षेत्र में गई, कोई रन आया नहीं। 2 डॉट गेंद्स आ चुकी हैं। स्ट्राइक पर कप्तान रुशाली घरत मौजूद हैं। विद द टर्न खेला है, इस बार कवर्स के ऊपर से खेला है, दंदनाती हुई गेंद क्या सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी। और जी हाँ, यहाँ पर इशारा आता हुआ 4 रनों का। तो ये एक शानदार चौका उस दबाव को हटाने के लिए जरूरी था। और पहली 2 डॉट बॉल के बाद यह चौका, लेकिन जोर चल रहा है दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन का। इस बार गेंद उछाल कर खेला डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 बाउंस 2 बाउंस और एक बार इशारा आएगा गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने का, 4 रनों का। तो बैक टू बैक 2 चौके यहां पर कप्तान के बल्ले से आते हुए बाएं हाथ से। राउंड विकेट क्रीज के कोने से, इस बार विद द टर्न खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, शॉट फाइन लेग, सर्कल के अंदर गेंद का पीछा कर रही हैं इस समय। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पुकारा है। 2 रन यहां पर पूरे होते हुए, और इस ओवर में जिस प्रकार से 10 रन आए हैं अब तक, 36 रनों पर पहुंची है टीम की गाड़ी। प्रकाश पुराणिक मेमोरियल ट्रॉफी अपने चौथे संस्करण में, और इस बार बैकफुट पे जाकर धीरे से खेलना चाहती थी गली की दिशा में, सर्कल के अंदर। वहां जिस तरह से पॉइंट मौजूद है, गली मौजूद है, ओवर समाप्त होता हुआ, तो कुल मिलाकर एक मिला जुला ओवर 10 ओवरों का यहां पर समाप्त हुआ है। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है पावर प्ले का, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 10 हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भामा क्रिकेट क्लब टीम की रन संख्या 60 है, 3 विकेटों के नुकसान पर। और जिस तरह से 172 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, इस गेंद को जिस प्रकार से फाइन लेग के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद जा रही है, सीमा रेखा की तरफ बढ़ रही है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, और ऐसा लगता है गेंद सीमा रेखा के करीब, बहुत कुछ हलचल हुई है। 4 रनों का इशारा यहां पर आता हुआ। तो आने वाले 10 ओवरों में 112 रनों की आवश्यकता है आपको। जीत के लिए 172 का टारगेट दिया था दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन की टीम ने। गेंदबाजी रिधि की, जिस अंदाज में वे गेंदबाजी कर रही हैं, सलोनी कूस्टे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। तो अब जबकि ये गेंद थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन उछलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई, डॉट होती हुई, और उस स्पॉट को जहां से गेंद अचानक उछली थी उसे देख रही हैं और थपथपा रही हैं उस स्थान से कि उस तरह का उछाल आए नहीं और गेंद बल्ले से कनेक्ट हो। यही सोच विचार, यही मंशा होगी। रिधि की अगली गेंद खेला ऑन साइड में, हल्के हाथों से सिंगल के लिए गई हैं, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगी, कोशिश की आवश्यकता थी वहां पर। दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन ने मुकाबला कड़ा अपनी तरफ मजबूत पकड़े हुए है। पूनम राउत और मंजीरी गावड़े की वह बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी चौथे विकेट के लिए। दोनों ही बैटर्स ने जिस तरह से अपने अपने अर्धशतक को पूरा किया था, और शतक के करीब पूनम राउत पहुंची थी। 97 रनों पर नाबाद रही पूनम राउत। अंजू स्ट्राइक पर हैं इस समय, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर केके हैं। तो अंजू और केके की जोड़ी इस समय है, और अंजू ने आगे बढ़कर खेला कवर्स के क्षेत्र में, थोड़ा सा लॉफ्टेड ड्राइव, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, सिंगल ही यहां पर मिलेगा अंजू को। Dilip Vengsarkar Foundation have won 2 titles already in this tournament. This is the season 4 and they have won 2 titles of it. Played all the 3 finals in last 3 seasons. This time trying to pull, appeal and given. KK have to walk back to the pavilion. Another batter departs at the score of 131. 5th wicket goes down for Bhama Cricket Club now. Now they need 41 of last 17. New batter comes into the crease. Fuller length, Yorker length, wide Yorker. Srushti Kudarkar comes into the crease. First ball, dot delivery for her. Last 16. This is the battle of final. This is the battle of title. This is the battle of pride for both of the teams. But Bhama CC will eagerly want to lift this title of this Prakash Puranik Trophy 2025 season 4.
They are playing their first final, and they have to become a new winner of this tournament. But they have the opponent like Dilip Vengsarkar. Only one team have dominated to the final regularly, and that is Dilip Vengsarkar Academy. And why they are finalists of these all 4 seasons? They are telling with their bowling, they are telling with their handling pressure system. This time there was a chance to the fielder, just a single on that ball. How Reshma has handled the pressure. She put the long on and long off, just a deep square leg, and the inside circle field is point, gully, third man, fine leg, covers, and mid off. And in a T20I game, 19th over is a crucial than the 28th, because this is the turning point of this match. Bowls Fuller goes at the deep mid wicket, just a single on this ball. Srushti and her partner batter this time goes in there and takes it properly. Caught and bowled. Another wicket go down. And this is 7th wicket down for Bhama Cricket Club. The domination they have shown in last 2 years, they are continuing their legacy with this wicket. Dilip Vengsarkar Foundation ahead and ahead, one step closer to lift another title and to make hat trick of the titles of this trophy. Last over, 6 balls, 29 needed of it. Experienced bowler Sheikh has played WPL for UP Warriors too, and she is bowling now. Her last over, Srishti Kudalkar on strike. As we can look at the field, they have deep mid wicket, long on, deep square leg, deep fine leg. All the deep fielders are at the leg side, strong zone of Srishti. There is a short boundary at the leg side. Goes over the top, goes over the point. How many runs she will get on that ball? Will it go for a boundary? Not a perfect throw, but 3 runs on that ball. So now they need 26 of last 5. You have a set batter like Srishti Kudalkar, and now she didn't even denies for a third one. I think there was a call, there was a responsibility to the Srishti to deny that single, another single, the third one. This time just a single, not a direct hit. Srishti looking for another run. We can say it just a domination. They have put a total of 171, targeting 172 to the Bhama Cricket Club. Steps out Bhama CC have done some errors, some mistakes, mistaken by Anju, looking very, very, very good in the middle. She lost her control and played another big shot, and on that shot, she caught by Poonam Raut at the long off. Fuller length, just last delivery remaining, and the domination too. Yes, and 1 ball, 23 runs needed. I think those 23 runs will definitely affect, and this will also learn a lesson. But this time, ball has been misfield as it going for 4 runs, but not the match. They are continuing their legacy by completing hat trick of these titles. This is just season 4, and 3 were dominated by one and only Dilip Vengsarkar Foundation in this tournament so far. The squad has been perfectly merged in each other's, and they are performing like perfect individually in this tournament so far.
Everybody has done their job very perfectly. And in the first innings, they have scored perfectly in middle over phases, and that has been helped to their team to score a perfect total of 171, put the runs on board. 172 runs was the target. Anju looked good, Rushali looked good, Mehak looked good, but not that good to chase down that total. And after all, this Prakash Puranik Trophy 2025 Season 4 have been dominated by Team Dilip Vengsarkar Foundation, winning their hat-trick title, third title of this season. थैंक यू सो मच. लेट्स गो टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन. तो हमारे साथ है वृषाली भगत, भामा क्रिकेट क्लब की कैप्टन. वृषाली, जिस तरह से 172 रन का आपको लक्ष्य दिया गया था और जो टीम आपके सामने थी, किस तरह से उस लक्ष्य को देख रहे थे आप दूसरे इनिंग में? हम स्टार्टिंग से ही जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है तो पॉजिटिव माइंडसेट से ही खेल रहे थे. हमारे प्लान्स क्लियर थे क्योंकि हमारे पास डेप्थ बैटिंग ऑर्डर थी. तो अभी भी 170 हुआ, हम लोग चेस करने के लिए ही गए थे. हार्ड लक था हमारा थोड़ा, बट बैटर्स आ रहा था, वो मार रहा था. वही माइंडसेट था, पॉजिटिव माइंडसेट से ही खेल रहे थे. जो फेज, ऐसा कौन सा आपको फेज लगा कि जहां पर थोड़ा सा आप बैकफुट पे आए? क्योंकि 10 ओवर के बाद 60 रन स्कोर था, लेकिन उसके बाद जब 91 रन चाहिए थे आखिरी 48 गेंदों में, तब भी आपके टीम ने मारने का ही सोचा. तो उस वक्त कौन सा ऐसा फेज आपको लगा कि जहां आपकी टीम थोड़ी बैकफुट पे आ चुकी थी? 17-18 ओवर्स में जब कृतिका का विकेट गिरा, तब उसने एक ओवर एटलीस्ट वो 7-8 रन आते थे तो भी नेक्स्ट ओवर में वो डोमिनेट कर सकती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्टिंग से खेल रही थी, उसको विकेट का अंदाज था. तो वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था वो. कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस टूर्नामेंट से सीख मिलेगी पूरी टीम को और आगे जाके वो इम्प्रूव करने पे ध्यान रहेगा? फर्स्टली ऐसा है कि हम हमारे बहुत वुमेंस का क्रिकेट बहुत अच्छे ग्राउंड पे होता है, तो ये ऐसे ग्राउंड्स पे आता था तो फील्डिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. तो एक मैदान क्रिकेट में भी फील्डिंग करना हम लोगों ने सीखना चाहिए कि एग्जैक्ट कि सिर्फ अच्छे ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे तो मैदान क्रिकेट में भी हम अच्छा कर सकते हैं. तो वो एक फील्डिंग ही मेन मोटो है. बाकी बैटिंग बॉलिंग लड़कियां अभी बहुत अच्छा कर रही है, तो फील्डिंग मेन पॉइंट है. अगर फील्डिंग से हम मैच जीत जाते थे, बैटिंग बॉलिंग हो जाता है. So we have president with us of this Shivaji Park Gymkhana, Mr. Praveen Amre sir, who is former Indian player, played for India 1991 to 1999. Sir, how this tournament, how you define the legacy of this tournament of season 4? Well, this is very important for women's cricket. I think Shivaji Park, Gymkhana and Mahim Juniors, both the club came together, and Gymkhana's and Mahim Juniors secretary, Mr. Prakash Puranik, who was very, very respected person in Mumbai cricket. And so we all decided it should be the name of Prakash Puranik. And it's good opportunity for Mumbai young women cricketers to play this type of tournaments and make their mark. And as it is, we know women's team is also doing so great. In fact, women's winning the World Cup, it's a big achievement, and I think we want our Mumbai girls to be also go to the next level and represent for India. Some young girls and young talents are coming with the experience. How you are looking forward to that, sir? Well, I think that's whole purpose was there. Like a talented girl should get that match experience, tournament experience, so they can go to the next level. And when they represent state and in their country, they will be. Nowadays, it's a franchisee also, so they can be a useful player for that franchisee also. तो हमारे साथ है भारत के भूतपूर्व क्रिकेटर और हम सबके चहीते, हम सबके लाडले अभिषेक नायर सर. सर, जिस तरह से प्रकाश पुराणिक ट्रॉफी का सीजन 4 घटा है और इस सीजन में तीसरी बार अपना डोमिनेशन दिखाते हुए दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन ने ये ट्रॉफी उठाई है, जिस तरह से ये सब लड़कियां खेली है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब माइम जुवेनाइल और शिवाजी पार्क जिमखाना जैसे दो बड़े क्लब जो मैदान क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी सालों से सहायता दी है, पिछले 4 साल से इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं. और WPL जब से शुरू हुआ है, आपको ये टूर्नामेंट से काफ़ी ऐसे खिलाड़ी है जो खेल चुके हैं वहाँ पे. सिमरन शेख ऐसे खिलाड़ी है जो आज भी खेल रहे थे और उन्हें वो मौका मिला था. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जीत हार तो होती रहती है और कोई टीम जीतते कोई टीम हारती है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो इनके पीछे रहते हैं, जो अपने हार्ड अर्न पैसे और जो स्पॉन्सर्स इन्हें बैक करते हैं,
है उनको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से, क्योंकि आप जब किसी को अपॉर्चुनिटी देते हो उसके बाद वो प्लेयर के हाथ में उसे कैसे उठाना है। सर, जो नए प्लेयर्स जो है जो इन सब एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ मिलकर ग्रूम हो रहे हैं, उनको कैसी सीख मिल रही है इन इस तरह की टूर्नामेंट्स? देखिए मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब आप एक खेल में आप जितना खेलोगे और जितने कंपेरेटिव स्पोर्ट खेलोगे उतना बेहतर बनोगे। जब आपके साथ अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं, पूनम राउत जैसे खिलाड़ी है जिन्होंने रन बनाया है, जिन्होंने आज भी रन बनाया है फाइनल में, आपको सीखने मिलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको तब मिलेगा जब आप दूसरे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा।